اہم اور بڑی خبر کے ساتھ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر نئے ایئر چیف مقرر ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے نئے ایئر چیف کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی مدت ملازمت پوری ہونے پر نئے ایئر چیف فضائیہ کی کمان سنبھالیں گے۔ مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے فیصل رضا سے۔ فیصل رضا، کل تقریب حلف برداری ہوگی، نئے ایئر چیف کمان سنبھالیں گے پاک فضائیہ کی؟ جی بالکل، ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کو نیا ایئر چیف جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ذرائع نے ابتدا میں تصدیق کی کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان جو کہ موجودہ پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں، ان کی مدت ملازمت پوری ہونے پر جو ہے وہ نئے ایئر چیف فضائیہ کی کمان سنبھالیں گے۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کل جو ہے وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کل جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر جو ہیں تاحال بطور ڈپٹی ایئر چیف انتظامی امور خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ پاک فضائیہ نے بھی ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کی تقرری کی باضابطہ تصدیق کر دی ہے۔ پاک فضائیہ کے نئے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر 19 مارچ کو اپنے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھالیں گے۔ ایئر مارشل ظہیر نے 1986 میں بحیثیت فائٹر پائلٹ پاک فضائیہ کی جو ہے وہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کی تھی۔ فائٹر اسکواڈرن آپریشنل ایئر بیس اور ایئر علاقائی کمانڈ بھی کر چکے ہیں۔ ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر سٹاف آپریشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ رہ چکے ہیں۔ اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف ٹریننگ آفیسرز اینڈ ڈائریکٹر جنرل پروجیکٹس کے طور پر بھی اپنی خدمات جو ہیں انہوں نے پیش کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری انہوں نے خدمات انجام دی۔ ایئر مارشل ظہیر برطانیہ کے کامبیٹ کمانڈر اسکول اور ایئر وار کالج اور رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے فارغ التحصیل ہیں۔ انہیں خدمات کے اعتراف میں اب تک ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازا جا چکا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل پاک فضائیہ نے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کی تقرری کی تصدیق کر دی ہے۔ پاک فضائیہ کے نئے سربراہ ایئر مارشل ظہیر احمد بابر 19 مارچ کو اپنے عہدے کا باضابطہ چارج سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ فیصل رضا۔ ناظرین، مستقبل میں انتخابات شفاف بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اقدام۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو خط لکھ دیا۔ وزیر اعظم نے اسپیکر قومی اسمبلی سے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی درخواست کر دی، اور وزیر اعظم نے اسپیکر کو لکھا کہ چاہتے ہیں آئندہ عام انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات ہو جائیں۔ شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ حالیہ سینٹ انتخابات میں ایک مرتبہ پھر پیسہ چلا۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ ہر سطح پر شفاف انتخابات کے لیے انتخابی اصلاحات کی بات کی۔ سینٹ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے اوپن بیلٹنگ کا مطالبہ کیا، قومی اسمبلی میں بل لائے اور سپریم کورٹ میں بھی گئے۔ سپریم کورٹ نے انتخابات کو شفاف بنانے کی ہدایت بھی کی۔ مستقبل میں انتخابات شفاف بنانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا اقدام سامنے آیا ہے۔ اور ادھر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت کی انتخابی اصلاحات کو دھاندلی کا نیا طریقہ قرار دے دیا ہے۔ کہا چوری شدہ الیکشن سے آنے والے الیکشن کے نظام میں بہتری کی باتیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اس اسپیکر کو خط لکھتا ہے جس کو نہ پارلیمانی آداب کا پتہ ہے نہ روایات کا۔ اس ملک کے وزیر اعظم نے اسپیکر کو خط لکھا ہے۔ وہ وزیر اعظم جس کو نہ پارلیمان کے آداب کا پتہ ہے نہ پارلیمان میں آتا ہے، اس اسپیکر کو خط لکھتا ہے جس کو پارلیمان کے نہ آداب کا پتہ ہے، نہ رولز کا پتہ ہے، نہ روایات کا پتہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی۔ یہ مشینیں کو اٹھا کے لے جائیں گے تو اس ملک میں کون سا انصاف ہوگا؟ ان مشینوں کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو غائب کر دیا جائے گا تو کہاں سے ہم کس کے پاس جائیں گے؟ آج ملک میں الیکشن چوری کرنے کا ایک نیا ذریعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بنانے والے کون ہیں؟ جو خود الیکشن چوری کرنے میں ملوث ہیں۔ وہ پارلیمان جو چلتا نہیں ہے، جس میں کوئی پارلیمانی آداب نہیں ہے۔ اگر اسپیکر کو پارلیمانی آداب کا پتہ ہوتا، اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر اس کے سامنے 5 اپوزیشن لیڈروں کا نام لے کر گالیاں نکالی، ان کی حد تک کی الزامات لگائے، اسپیکر خاموش بیٹھا رہا۔
आज उस स्पीकर की पार्लिमानी कमेटी में कौन जाएगा? बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत की जानिब से तनकीद की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इंतखाबी फ्रॉड के सामने सरे तस्लीम खम करने के लिए इलेक्शन कमीशन को धमकियां नाकाबिल मजम्मत हैं। धांधली में शराकतदार बनने से इनकार को बगावत के तौर पर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफों का मुतालबा ब्लैक मेलिंग के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां आइन और कानून के मुताबिक निभानी हैं। पूरी कौम और आइन इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ा है। तहरीक इंसाफ एक मशकूक जमात है जिसने इक्तदार पर कब्जे के लिए फॉरेन फंडिंग के जरिए लाखों डॉलर्स बटोरे। बिलावल भुट्टो की इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत की जानिब से तनकीद की शदीद मजम्मत। बयान में कहा कि इंतखाबी फ्रॉड के सामने सरे तस्लीम खम करने के लिए इलेक्शन कमीशन को धमकियां काबिल मजम्मत हैं। धांधली में शराकतदार बनने से इनकार को बगावत के तौर पर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफों का मुतालबा ब्लैकमेलिंग के मुतरादिफ है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस्तीफे न देने पर मौलाना फजलुर रहमान की सख्त तनकीद। कहा कहीं नहीं लिखा था इस्तीफे आखिर में एटम बम की तरह इस्तेमाल होंगे। जब लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ 9 जमातें इस्तीफों पर मुत्तफिक थीं। पीपल्स पार्टी को चंद दिन की मोहलत दी है, खुदा करे उन्हें बात समझ आ जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम में इख्तलाफात का भी एतराफ कर लिया। पीडीएम में डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तलाफ राय आता रहता है। सो कल भी आया। इब्तिदाई तौर पर जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे दें, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतजार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और 9 जमातों की राय का एहतराम करें और वो पीडीएम के रुकन रहें, उनके साथ रहें। हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। पहले पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाएं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का मशवरा। वो कहते हैं कि इस्तीफा हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। पीपल्स पार्टी अपने बयानिए पर कायम है। राजा परवेज अशरफ मजीद कहते हैं कि पार्लियामान में रहेंगे, सड़कों को भी गर्म रखेंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। हम पार्लियामान चला रहे हैं, पार्लियामान में हम बिल लाते हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि ऐवान को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। हम चाहते हैं कि हम पंजाब में जाएं, पंजाब में अदम एतमाद लेकर आए, वहां बड़ी थिन मेजॉरिटी है। एक बात, उसके बाद हम कौमी असम्बली में आ सकते। कौमी असम्बली में एक स्पीकर के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद लाएं और फिर हम लॉन्ग मार्च भी करना चाहते हैं। उसकी तो तैयारी हम कर ली है। और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो हम पाकिस्तान के अवाम की जो राय आमा उसको हमवार करते हुए फिर इस्तीफों का अगर मौका आता है तो हम देने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन जमातों का हुकूमत मुखालिफ बयानिया आपस में इख्तलाफात की नजर हो गया। सरबराही इजलास में तलखी, एक दूसरे पर तंज और ताने। आसिफ जरदारी ने खाली खजाने का जिक्र कर दिया तो बिलावल भुट्टो ने सवाल किया। मौलाना और महमूद अचकजई ने भी तुंदो तेज जवाबात दिए तो मोबाइल फोन लीक के भी चर्चे रहे। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। पीटीआई सरकार को गिराने के मिशन पर निकली पीडीएम खुद ही लड़खड़ा गई। 10 जमाती ऑपोजिशन इत्तेहाद ने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर फैसला करना था, मगर आपस में ही उलझ पड़े। गुज़िश्ता रोज सरबराही इजलास में आसिफ अली जरदारी के जारहाना रवैये ने ऑपोजिशन की सफों में हिजान पैदा कर दिया। आसिफ अली जरदारी बोले, सियासत बाहर रहकर नहीं होती, हमने सारी उम्र जेल में गुजारना है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी कुर्बानियां याद दिलाई। मामला इस्तीफों का आया तो सब जमातें एक तरफ और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ थी। तंग आकर बिलावल भुट्टो ने सवाल किया कि हमें बता दे कि हमें पीडीएम में रखना है या नहीं, जिस पर मौलाना ने भी तल्ख जवाब दिया। कहा, अपनी सीईसी से पूछकर हमें बता दें। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई गलत था। अगर पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि हमें
फौरी तौर पर इस स्टेज पर इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। अगर बाकी जमातें ये समझती हैं कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्तीफ़े देने चाहिए तो हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा बुलाना होगा। आसिफ अली जरदारी ने बावर कराया कि नए इलेक्शन हो सकते हैं, ना इस्तीफे आएंगे। कहा कि जिसको देखो कराची आ जाता है, पूरे सिंध का बजट कराची पर लगाना पड़ता है। पीडीएम सरबराही इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के मोबाइल फोन के जरिए पैगामात बाहर भेजने पर भी तलखी हुई। मौलाना फजल रहमान ने कहा जमहूरी और मजहबी तकसीम ना की जाए। वज़ीर दाखिला की बात कर लें, जो कहते हैं कि पीडीएम ने अच्छा फैसला किया, अब असम्बलियों में आने और इंतखाबी इस्लाहात भी लाने की कोशिश करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद बोले कि अवाम अपोजिशन का बयानिया पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। मौलाना को कहा था उनसे फिर हाथ होगा और हो गया। वो सारे मिलकर भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर दाखिला ने नवाज शरीफ को वापस आने के लिए एमरजेंसी सफरी सर्टिफिकेट देने की पेशकश कर दी। आइए देखते हैं। पीडीएम ने एक अच्छा फैसला किया। मैंने फजल रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। सियासी फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने, और ज़ाहिर है आसिफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। आज नून लीग में 2 सियासी सोच के ग्रुप है, बेशक उसका इकरार करें या इनकार करें, और वो ख़ानदान के अंदर ही है। अगर नवाज शरीफ साहब को एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। वो शायद गए इसलिए हैं कि उन्होंने वापस नहीं आना। रमज़ान ठंडा गुजरे मेरी ख्वाहिश थी, और सियासत में एक सुकून आया, उनको असम्बलियों में आना चाहिए। कब्जा माफिया और जखीरा अंदोजों को किसी किस्म की रियायत न दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की कब्जा माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा जखीरा अंदोज किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। रमज़ान अल मुबारक से पहले अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएं। मजीद क्या कहा जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी ये बताएगा कि वज़ीर आज़म तो पुरआज़म हैं कि अवाम को रिलीफ हर सूरत देना है। उनका मजीद क्या कहना था इस मौके पर? जी बिल्कुल, वजीर आजम की जेर सदारत जो है इजलास हुआ, जिसके अंदर कब्जा माफिया और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पंजाब हुकूमत को हदायत जारी की गई हैं। वजीर आजम इमरान खान ने ये हदायत जारी की। वजीर आजम की वजीर आला पंजाब चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के साथ मीटिंग थी, जिसके अंदर उन्होंने जो अहकामात जो है वो जारी किए हैं। कब्जा माफिया और जखीरा अंदोजों को किसी किस्म की रायत जो है वो मत दी जाए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जखीरा अंदोज किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। रमजानुल मुबारक से पहले और रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएं। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन भी उनका कहना है कि बिला तफरीक जो है वो जारी रखा जाए। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर इस वक्त ऐवान वजीर आला के अंदर मौजूद है, जहां पर वो मुख्तलिफ इजलासों की सदारत कर रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी। नाज़रीन, NA 249 ज़िमनी इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 रहनुमा ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान में आ गए हैं। MQM पाकिस्तान के 7 और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवारों के कागजात जमा हुए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वकास बाकिर से। वकास बाकिर 7 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और पीपल्स पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं, MQM के 7 उम्मीदवार हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया है इस सीट पर। मजीद बताएगा किस तरफ जा रहा है इंतखाबी मार्का? जी बिल्कुल, NA 249 कराची की निश्चित पर ज़िमनी इंतखाब के लिए आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज था। मजमूई तौर पर 55 उम्मीदवारों ने इस निश्चित पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 13 रहनुमा शामिल है, जिनमें रुकने सिंध असेंबली मलिक शहजाद भी शामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताहाल अपने किसी हतमी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, और यही वजह है कि PTI में इख्तिलाफात के सबब मुतादिद रहनुमाओं ने अपने तौर पर भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। 55 उम्मीदवारों में 16 उम्मीदवार आजाद हैसियत में इन इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, जबकि दीगर उम्मीदवारों का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट समेत 8 दीगर जमातों से है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 2, नून की जानिब से 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। NA 249 के निश्चित पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 29 अप्रैल को होगी और 25 मार्च तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल होगा। उसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त का इजरा किया जाएगा। सही, बहुत शुक्रिया वकास बाकिर।
नाज़रीन, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया और लॉन्ग मार्च मुलतवी होने के मस्बत असरात भी दिखाई देने लगे। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इंटर बैंक में 98 पैसे सस्ता हो गया। शायद ही के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 593 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 45,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और लॉन्ग मार्च मुलतवी होने के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इंटर बैंक में 98 पैसे सस्ता हो गया और शदीद मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई।